لیکن ابھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. اس وقت جب نبی کی امی کا عمر 7 سال تھی. دیکھیے اللہ جس کے تذکرہ کو بلند و بالا کرتا ہے وہ کس کے ذریعے کرتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان. ایک بادشاہ تھا. جب نبی کی امی کا عمر جب 7 سال کی تھی اس وقت جب ایک بادشاہ کی لڑکی ہوئی تو بادشاہ کہنے لگے کہ اس کو زندہ دفن کر. ہمیں بیٹی کا منہ نہیں دیکھنا ہے. جب بیٹی کا منہ نہیں دیکھنا ہے تھوڑی توجہ دیجیے گا میں آپ کو بہت اہم بات بتا رہا ہوں. بادشاہ کہنے لگے کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دو. تو وہ بادشاہ کا جو غلام ہے ایک جگہ لے گیا. لے جانے کے بعد گڈھا کھولتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی گڈھا کھولتا ہے اور کھودنے کے بعد جیسے ہی بچی کو دفن کرنے کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے آواز آتی ہے ایک اچھی آواز کہ نادان اگر بیٹی کو پالنا نہیں جانتا ہے تو اس کو چھوڑ دے. آواز آتی ہے. جب یہ آواز آئی آگے دیکھتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں دائنا دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن آواز تھی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا بہم ہوگا یہ کوئی میری آواز ہوگی میں نے سنا ہے. پھر دوسری مرتبہ یہ آواز آتی ہے کہ اگر ظالم اس کو پالنا نہیں چاہتا ہے تو اس کو چھوڑ دے. تو اس نے نہیں چھوڑا. پھر تیسرا مرتبہ جیسے کہ اپنے تلوار کو اٹھایا اس کو کاٹنے کے لیے اس کو قتل کرنے کے لیے جیسا ہی وہ تلوار کو اٹھاتا ہے آواز آتی ہے کہ ظالم اگر بچی کو پالنا نہیں سکتا اگر بچے کو کھلانے پلانے اگر تیری اوقات نہیں ہے اسے چھوڑ دے ہم اپنی رحمت سے اسے پالن پوشن کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے آواز آئی نا اس نے اپنے بچی کو گود میں لگایا اور جیسے بچی کو گود میں لگایا لے جانے کے بعد اپنے گھر میں اس کو لالن پالن کرتا ہے اپنے اس کو پالتا اور پوستا ہے. اور اس کو جب دینی سکھا دینی علم اتنا دیا ہے اس کو زمانے کا کاہنہ بنا دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بچی جو ہے جس کو قتل کرنے کے لیے لے گیا تھا اس کو پالن پوشن کر کے اتنا بڑا کر دیا ہے. جب اس کو جوان کیا ہے اس کو دین تعلیم کیا ہے اور دین تعلیم کرنے کے بعد جو ہے اس کو کاہنہ بنایا ہے. اور کاہنہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں جو تقدیر کو دیکھ کر وہ لکیریں بتاتی ہے اس کو عربی میں جو ہے کاہنہ کہا جاتا ہے. وہ بچی جس گلی سے گزرتی تھی جس محلہ سے گزرتی تھی جس کو بھی دیکھتی تھی اس کو بتا دیتی تھی کہ تیرے تقدیر میں کیا ہے اس کے تقدیر میں کیا ہے. حضرت آمینہ کا آپ واقعہ سماعت کیجئے. نبی کی امی کی واقعہ کو آپ سماعت کیجئے. ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. ان کی امی کا عمر ابھی 7 سال ہے. مدینہ شریف میں تشریف لائے ہیں. اپنے مناف کے گھر میں وہ تشریف لائے ہیں. جانتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس خاک زمین میں تشریف نہیں لائے ابھی ماں کا عمر ابھی 7 سال ہے. جانتے ہیں حضرت آمینہ کا جو ہے چلنا الگ ہے آمینہ کا بولنا الگ ہے. آمینہ جب بولتی تھی بڑی بڑی عورتیں جو ہے ان کو کان لگا کے سنتی تھی کہ آمینہ کیا کہہ رہی ہے. آمینہ کا بولنے کا انداز جو ہے نرالا ہے. حضرت آمینہ کا جو ہے چلنے کا انداز جو ہے نرالا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا جانتے ہیں ایک دن اس کاہنہ کا گزر جو ہے مدینہ شریف سے گزر ہوتا ہے. جب مدینہ شریف سے گزر ہوتا ہے پڑوس کی عورت کہتے ہیں کہ آمینہ تیرا چلنا تیرا بولنا تیرا اٹھنا تیرا پڑھنا جو ہے سب سے نرالا ہے سب سے انداز الگ الگ ہے. جب آج تیری بھی تقدیر دکھا دے ہے آج تیری بھی آپ کو دکھا کر اس کائنہ سے تیرے تقدیر میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. اسی لیے کہ جب اس عورت نے حضرت آمینہ کے ہاتھ کو پکڑتی ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ سن مجھے اللہ پر بھروسہ ہے مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. مجھے جو کوئی ہاتھ دے کر اگر میری لکیریں بتا سکتا ہے مجھے اس کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے رب کی ذات پر بھروسہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر بھی وہ عورت جو ہے آمینہ کو ٹانتے ہوئے آمینہ کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اس عورت کے قریب لے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج عید میلاد النبی کرنے والے آج جشن عید میلاد النبی کرنے والے ذرا غور سے سوچو جب مصطفیٰ جان رحمت کی
अम्मी को हजरत आमिना को देखकर लाइन में खड़ा करती है। वो काहिना आती है, सबके हाथ को देखती है, लकीरें बता देती है, उनके तकदीर में ये है, उसका तकदीर में ये है, उसकी लकीरें ये कहती है, उसकी लकीरें ये कहती है, सबकी तकदीर को बता देती है। जब आमिना की बारी आती है, अल्लाह अकबर कबीरा, जब आमिना की बारी आती है, हाथ को देखते हैं, वो काहिना जो है देखती रहती है और हाथ के लकीर को देखने के बाद जो है अल्लाह अकबर उसके माथे से पसीना आता है और लोग कहते हैं, औरतें कहती है कि ऐ काहिना तू वक्त में पलक झपकने से पहले सबकी तकदीरें बता सकती है, लेकिन आमिना के हाथ के लकीर में क्या है तो नहीं बता पा रही है, तेरे माथे में पसीना क्यों है? हजरत आमिना के लकीर को देखने के बाद वो काहिना कहती है कि जानते हो इस आमिना के हाथ को देखने के बाद मुझे पता चलता है बड़ी अच्छी बात है, आप लोग समाज कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वाकया है, अगर आप सुनेंगे ना आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं तो आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े जलसे में भी आपको ऐसा वाकया सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं बड़े बड़े जलसे में जितने उलमा शोहरा आते हैं अपने अपनी शोहरत पर मशहूर रहते हैं, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत और खास मेरे नजीमुल भाई की मोहब्बत है और इमाम साहब की भी मोहब्बत है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह में तशरीफ लाया हूँ। सुभान अल्लाह। सुनिए नबी की अम्मी क्या वाकया आप सुनिए। वो काहिना फरमाती है जब तमाम लोग, तमाम बच्चे बच्चियां औरतों को हाथ के लकीर को देखने के बाद तुरंत बता देती है तो औरत पूछती है, तमाम औरतें पूछती है, ऐ काहिना बता कि जब आमिना के हाथ के लकीर में क्या है जो तू तेरे माथे से पसीना आ रहा है तू बता नहीं पा रही है। वो काहिना फरमाती है कि जानती हो मैं इसके हाथ को लकीर को देखने के बाद मैं हैरान हूँ, मैं हाथ के लकीर में मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है कि ये कोई नबी बनेगी या तो कोई नबी की माँ बनकर दुनिया में क्या चला कि किसी बच्ची को बचाने का मकसद ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, किसके जरिए से अल्लाह किसकी हिकमत को बुलंद व बाला करे ये अल्लाह तबारक व तआला जानता है। उसको बचाया अल्लाह ने, उसको काहिना बनाया ताकि नबी की अम्मी का आने का और नबी की शोहरत को आम कराना था। अल्लाह तबारक व तआला इसलिए बच्ची को बचाया है। आप जानते हैं ये तो माँ आमिना है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ है। तो बेस कमाओ, तो इसलिए ये नबी की अम्मी का बात है। आप जानते हैं कि नबी की अम्मी का घर कहाँ जानते हैं? सुनिए, इरशाद फरमाइए। नबी की अम्मी का घर कहाँ जानते हैं? ये मदीना शरीफ है। सब मिलकर बोलिए मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। और नबी के अब्बू का घर कहाँ जानते हैं? मक्का शरीफ में। बोलिए कि मक्का शरीफ। इसीलिए हम लोग यही कमजोर है। अगर कोई वहाबी देवबंदी कोई पूछ ले नबी का तो आमद मनाते हो कि नबी का वालिद साहब का घर कहाँ है, नबी की अम्मी का मतलब उनकी ननिहाल कहाँ है, नानी का घर कहाँ है, हम लोग बता नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि नबी की अम्मी का जो घर है वो मदीना शरीफ में है और नबी का वालिद माने नबी के अब्बू का घर कहाँ है? मक्का शरीफ में।
میں آپ کو بتا دوں ایک واقعہ نبی کے ابو کا. ابھی ان کا عمر کتنا سال جانتے ہیں؟ 6 یا 7 سال کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام جانتے ہیں؟ حضرت عبداللہ. بولیے سبحان اللہ. نبی کے ابو کا نام حضرت عبداللہ اور ان کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب. جو خانہ کعبہ کے متعلق ہے ان کا نام ہے حضرت عبد المطلب اور ان کے باپ کا نام حضرت عبداللہ اور ان کے بیٹے کا نام محمد رسول اللہ. ان کے بیٹے کا نام محمد رسول اللہ. جانتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, ابھی تو ہم شروع نہیں ہوئے, ہم شروع ہوں گے, آپ لوگ اندر توجہ دیجیے گا. ابھی ہم تیار نہیں ہوئے, بس ابھی ہم شروعات ہے. سنیے, میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے, ان کی ماں کا شہرت ہو گیا کہ یہ کوئی نبی کی ماں بن کر دنیا میں تشریف لائی ہے یا تو کوئی نبی بن کر تشریف لائی ہے. تو آج نبی کی ماں بن کر تشریف لائی ہے. یہ ہمیں اور آپ کو پتا چل گیا کہ ابھی نبی آئے نہیں, دنیا میں شہرت ہو گئی کہ یہ نبی کی ماں بن کر تشریف لائی ہے. اب نبی کی اپنی بارگاہ میں چلیے. میں آپ کو بتا دوں, بنی اسرائیل کے قوم میں ہلچل مچ گئی. ہلچل مچ گیا. کیا مچ گیا؟ کہ جو آخری نبی ہوں گے, جو آخری نبی ہوں گے, یعنی محمد رسول اللہ جو آخری نبی ہوں گے, ان کا جو ہے پشت جو ہے ابھی سمجھ لیجئے کہ پیدا ہو گیا ہے. ابھی پیدا ہو گیا. کہاں ہو گیا؟ بولے مکہ شریف میں. بنی اسرائیل کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب ہمارے بنی اسرائیل کے نبوت جو ہے اب جانے والی ہے. اب تمام لوگ گاؤں میں مشورہ کرنے لگے کہ اگر ہماری نبوت چلی گئی, جو آخری نبی ہوگا, ہمارے کتاب میں کیا یہی لکھا ہوا ہے؟ بنی اسرائیل کے قوم کے کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے جو پشت ہیں وہ تشریف لے آ گئے ہیں. کہا کہ ایک کام کرو, جب وہی نہیں رہے گا, عبداللہ اگر آ گیا ہے, اگر عبداللہ کو اگر ختم کر دیا جائے, نہ رہے گا عبداللہ, نہ آئے گا محمد رسول اللہ. اس میں سبحان اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ جو ہے کس کو کس کے ذریعے سے ظاہر کرے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو تمام لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایک کام کرو, عبداللہ کو ختم کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. جب عبداللہ کے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے, میرے قوم کے شہزادوں تھوڑی توجہ سے آپ سماعت کریں. جب عبداللہ کو ختم کرنے کا, کون اس کو قتل کرے گا؟ ایک کیلر کو بلایا جاتا ہے, بہت دور سے کیلر کو, یعنی جو بندوق مارتا ہے, دور سے اس کا نشانی پکا ہوتا ہے, ایک کیلر کو بلایا جاتا ہے. کیلر کو بلانے کے بعد اللہ اکبر اس کو کہتا ہے, ایک کام کرو, ایک بچہ ہے 6 یا 7 سال کا عمر ہے, میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان حضرت عبداللہ کی میں بات کر رہا ہوں. اس کیلر کو کہا جاتا ہے, ایک کام کرو, ایک بچہ ہے 6 یا 7 سال کا عمر ہے, اس کو قتل کرنا ہے, اس کے سر جو ہے لے کے آنا ہے. اگر عبداللہ کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں اتنا انعام سے دیا جائے گا, اور اتنا انعام نہیں ہے, تمہارے 7 پشت تک جو ہے بچہ آئے گا, اتنا انعام سے تمہیں مالا مال کیا جائے گا, تو تمہارا 7 پشت تک کھاتا رہے گا, لیکن کمی نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ ایک بچہ کو مارنا ہے, ایک بچہ کو قتل کرنا ہے, اسی کے ذریعے سے جو ہے ایک بچہ کے لیے اتنا انعام ملے گا. اس نے کہا کہ ہاں, ایک بچہ کے لیے اتنا انعام ملے گا. اللہ اکبر. اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے, ایک وادی ہے, ایک جگہ ہے, 2 کھجوروں کے بیچ مکہ شریف کہا جاتا ہے. اسی مکہ شریف میں جو ہے عبداللہ کو ملے گا, اور عبداللہ کو جو قتل کر کے لے آئے گا, اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ کیلر جو ہے پہنچ جاتے ہیں ایک وادی پر, ایک کنارے پر پہنچتے ہیں, جہاں دیکھتے ہیں پڑوس کے کچھ بچے کھیلتے ہیں, اس میں حضرت عبداللہ بھی کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت عبداللہ کھیل رہے ہیں, اسی بچے کو دیکھتے ہیں جس کا انداز نرالا ہے, جس کا بولنا نرالا ہے, جس کا بولنا, جن کا دیکھنا
जो है अंदाज ही कुछ अलग है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी बच्चे को किलर बुलाते हैं और कहते हैं एक काम करो, मुझे अब्दुल्ला का खबर दे दो। अरे अब्दुल्ला ही से पूछते हैं कि अब्दुल्ला का खबर दे दो। उसने कहा कि क्या करोगे? कहा कि ये राज की बात है, हम तुम्हें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये अब्दुल्ला जो है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा करेगा, ऐसा भी नहीं बताया है। बताया कि ये राज की बात है। हजरत अब्दुल्ला जो है अभी 6 या 7 साल के उम्र में कहते हैं कि अगर राज की बात है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे बता दिया जाए। उसने कहा कि सुनो कि अब्दुल्ला जो है इसको कत्ल करके मुझे बुलाया गया है, मैं उसके कत्ल करके मैं बादशाह को उसके सर दूंगा, ताकि मुझे बहुत सारे इनाम से मालामाल होना है, इसीलिए कि मुझे जा जाए। उसने कहा कि तुम परदेश लग रहे हो, तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें प्यास नहीं है। नबी का घराना कैसा घराना है, जिनको कत्ल करने के लिए इरादा करके आए हैं, वही बच्चा जानता है कि मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन वही बच्चा कहता है कि तुम परदेश लग रहे हो, तुम परदेश से आए हो, तुम्हें भूख भी लगी होगी, तुम्हें प्यास भी लगी हुई, कोई खाने की हाजत हो तो बताओ। तो हजरत अब्दुल्ला की बारगाह में कहते हैं कि हाँ मैं परदेसी हूँ, मुझे खाने की हाजत है। अल्लाह अकबर कबीरा। दौड़े दौड़े अपने घर जाते हैं, एक कटोरा लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं, कुछ खजूरें लेते हैं, ले आकर उसको खिलाते हैं। कहते हैं कि इसको खा लो, इसको पी लो, पानी को पी लो, खजूर को खा लो और तुम्हारी भूख और प्यास मिट जाएगी। और जब खाने के बाद तंदुरुस्ती हो जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे कि तंदुरुस्त हुआ, कहा कि मुझे अब्दुल्ला का पता दो, मैं उसे कत्ल करके उसके सर को ले जाऊंगा, उसके बादशाह को पेश करूंगा, मुझे ढेर सारा इनाम से मालामाल होना है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था, हजरत अब्दुल्ला खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, तुम जिस अब्दुल्ला को ढूंढ रहे हो वो अब्दुल्ला अगर ना मिले मुझे ही कत्ल करके ले चलो। कहा कि नहीं नहीं, तुम मुझे पानी पिलाए हो, तुम मुझे खजूर खिलाए हो, हम तुम्हें कत्ल नहीं कर सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जानते हो तो तुम जिस अब्दुल्ला को ढूंढने के लिए आए हो वो कोई अब्दुल्ला नहीं है, हम तुम्हारे पास खड़े हैं, मुझे कत्ल कर दिया। कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हें कत्ल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि तुमने मुझे पिलाए हो। तुम अब्दुल्ला सुनो, मैं जानता हूँ। इतना सुनना था, उनके हाथ से तलवार जमीन पर गिर जाती है और जैसे कि जमीन पर गिरा अपने कदम पर रख देते हैं और कहते हैं कि सुन, जब अब्दुल्ला तेरी इखलाक इतनी अच्छी है तो आने वाले तेरे नस्ल में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह आएगा उनका इखलाक कितना अच्छा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नूर की आमद, नूर की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अच्छे की आमद, अच्छे की आमद, सरकार की आमद, नूर के बारे कि नबी के पाक का जब इखलाक इतना अच्छा है तो आने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का कितना इखलाक है। तो इसीलिए तो हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। आप जानते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप पता चल गया कि मेरे नबी के बाप का इखलाक कितना अच्छा है और उनकी माँ का इखलाक किरदार जो है कितना अच्छा है। आज जो हम जिक्र अस्कार करा रहे हैं कि नबी के, आज जो नबी के अब्बू और अम्मी का जब तज़किरा हम करते हैं तो जरा बताओ मदीने वाले कितने खुश नसीब, खुश हो। जब मदीना वाला खुश हो जाए तो हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाए। इसीलिए तो हम जिक्र अस्कार करते हैं। जो लोग कहते हैं ईद मिलाद नबी करना ये बिदअत है, ये शिर्क है, उसकी बात पर मत जाइए, खुद भी जहन्नम में जाएगा और सारे लोगों को जहन्नम में जाएगा। पक्का है ये जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं आपको बताऊंगा कि ये जिक्र कहां से आया, अगर वक्त मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग उतने बड़े मुकर्रिर थोड़ी है ना, बस जो है आपकी मोहब्बत है, फिर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, है ना। सुनिए, आप समझ गए
کہ میرے نبی کے امی یعنی نبی کا ننیحال جو ہے یہ مدینہ شریف ہے اور ابو کا گھر جو مکہ شریف ہے. اب سنیے کہ جب نبی کے ابو کا یہ اخلاق اتنا اچھا ہے حضرت عبداللہ کا, تو ذرا بتاؤ کہ ان کے جو ہے ان کے نکاح کے لیے بھی بچی بھی تو اتنا اچھا ہونا چاہیے. اور جو جتنا اچھا ہوگا تو ان کے لیے بچی بھی تو اتنا اچھا ڈھونڈنا پڑے گا نکاح کے لیے. تو ایک دن جو ہے خانہ کعبہ میں حضرت عبدالمطلب جو ہے طواف کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے. آنکھ لگنے کے بعد جو ہے نیند میں ایک بزرگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ عبدالمطلب بہت ٹینشن میں لگ رہے ہیں, بہت سوچ و فکر میں. کہا کہ ہاں حضور فکر تو ہوگی, بچے بڑے ہو گئے, ان کا نکاح کرانا ہے. کہا کہ بچی ملا؟ اس نے کہا کہ حضور اب تک تو نہیں ملا. کہا کہ ایک کام کرو, مدینہ شریف میں ایک مرد ہے جن کو عبد مناف کہا جاتا ہے, ان کی گھر میں ایک بیٹی ہے جس کو آمنہ نام رکھا, اور اس کی بارگاہ میں جاؤ اور اپنا نکاح کا جو ہے اپنی اجازت لے کر اپنے بیٹے کے لیے اس کا نکاح کرا دو. کہا کہ حضور آپ ہیں کون؟ نکاح کرانے آپ جو آئے آپ کون؟ کہا کہ مجھے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت عبدالمطلب کے خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عبد مناف کے گھر میں ایک بیٹی ہے مدینہ شریف میں, جاؤ اپنے بیٹا کا رشتہ لے کر جاؤ اور جا کر وہاں اپنا بیٹا کا رشتہ جا کر مانگو اور وہ تمہیں اجازت بھی دے گا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ عبداللہ کے ہاتھ میں بھی دے دے. اور پھر صبح اٹھے فوراً کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, تھوڑی توجہ سے آپ سماعت کیجئے. صبح اٹھے اپنے بیٹے کو لیے حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلب جو ہے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں. اور جانے کے بعد جیسے کہ صبح دروازہ کو کھٹکھٹایا, دروازہ کو جیسے ہی کھٹکھٹایا آواز آئی کہ کون؟ کہتے ہیں کہ میں کعبہ کا مطلب ہوں, مجھے عبدالمطلب کہا جاتا ہے, میں گھر آیا ہوں, تمہارے گھر دروازہ کھولا. کہا کہ حضور آپ خانہ کعبہ کے اتنے بڑے مطلب ہیں, آپ خانہ کعبہ میں مکہ شریف میں آپ کی شہرت ہے, آپ کی مکہ شریف میں جو ہے اتنے لوگ عزت کرتے ہیں, آپ مدینہ شریف چل کر آئے ہیں, آپ اگر مجھے خبر کر دیتے تو میں آ جاتا, لیکن آپ آئے ہیں. اس کے اندر گئے, پھر بیٹھے. سنو آپ لڑکوں کے باپ بھی سنو, اس بات کو غور سے سنو, رشتہ ایسا نہیں مانا جاتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے انجینئر ہے, میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا 70 ہزار کماتا ہے. ایسا نہیں, بیٹے کا باپ کیسا ہوتا ہے سنو, حضرت عبدالمطلب سے سیکھو, میرے آقا کے دادا جان سے سیکھو. اپنے جاتے ہیں 3 دن تک ان کے گھر میں رہتے ہیں اور 3 دن کے بعد اپنے جھولی کو پھیلاتے ہیں, اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد مناف سن لے, مجھے جو ہے تمہاری بیٹی آمنہ جو ہے مجھے پسند ہے, تمہاری بیٹی جو ہے آمنہ کو مجھے بھیک میں دے دو, میں اپنے بیٹے عبداللہ کو اس کے ساتھ میں نکاح کرا دوں. سبحان اللہ. اب سنو, جب کسی کے گھر میں نکاح کے لیے جاؤ, کسی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے جاؤ, اونچی شان میں مت جاؤ, کیونکہ حضرت عبدالمطلب جب اپنے بیٹا کا رشتہ لے کر گئے عبد مناف کے گھر میں, جھولی کو پھیلایا اور کہا کہ آمنہ کا ہاتھ میرے بیٹے عبداللہ کے ہاتھ میں دے دو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے دے دیا. حضرت عبدالمطلب پوچھتے ہیں کیا تم میرے بیٹی کے بارے میں پوچھو گے نہیں, میری بیٹی کیسی ہے, میری بیٹی لنگڑی ہے کہ نہیں, میری بیٹی بولتی ہے کہ نہیں, میری بیٹی جو ہے اس طرح, میرا بیٹا جو ہے کام کیا کرتا ہے. عبد مناف پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھو گے کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے. عبدالمطلب کہتے ہیں, عبد مناف کہتے ہیں کہ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خانہ کعبہ کے متعلق ہے, مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج کل ایسا ہوتا ہے بیٹا کیا کرتا ہے, انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے, کوئی سروس کرتا ہے یا لکڑا والا کام کرتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, کماتا کتنا ہے, ان کی
शोहरत जो है गांव के हर एक आदमी से पूछा जाता है। अब जब मनाम कहते हैं कि सुनो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कि कल की रात में जो तेरे ख्वाब में जो आए थे हजरत इब्राहिम अली खलीलुल्लाह, जो तेरे ख्वाब में बता के गए थे, वही आज की रात में मुझे भी बता कर चले गए। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह आ सकते हैं तो निकाह कराने वाला जिस तरीके से उन बच्चे के निकाह में जरा बताओ कि जब इब्राहिम खलीलुल्लाह जिनको जद्दुल अंबिया कहा जाता है, वो अगर अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में आकर कहे कि फला जगह एक लड़की है, जाकर उनका संबंध लगाओ, निकाह का रिश्ता लगाओ, और फिर वही रात में फिर अब्दे मनाफ के घर में जिनकी बेटी है आकर कहे, तो फिर बेटा कैसा है बोलने की क्या जरूरत है ना। फिर निकाह हुई, कैसे निकाह? आज के जैसा नहीं कि 200 बरियात लेके आओ, है ना, 100 डोले की बीवी लेके आओ, ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम सादा सफेद निकाह हुई, निकाह हो गई। हजरत अब्दुल्लाह की निकाह हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही निकाह हुआ ना, फिर निकाह होने के बाद हजरत अब्दुल्लाह जो है एक दिन जो है हजरत आमिना के करीब बैठे हैं और बैठने के बाद कहने लगे कि सुनो, हजरत आमिना को फरमाती है कि आमिना मैं बड़े खुशनसीब हूँ कि तू जैसी पारसा और खूबसूरत औरत मुझे मिली है। हजरत आमिना कहती है कि नहीं नहीं, ये अल्लाह का एहसान और करम है कि तुझ जैसा मुझे जो है पारसा और अब्दुल्लाह मिला है, तुझ जैसे शोहर मुझे मिला है। आजकल औरतें ऐसी बात करती है? नहीं करती है, क्योंकि जानती है ये दुआ होती है। आपके इमाम साहब मौजूद है, अगर कोई बीबी, अगर कोई शोहर, अगर कोई परदेश जाता है, अगर उसके हंसी खुशी अगर उसको जाहिर करती है, अगर उसको परदेश जाने में उनके हक पर दुआ करती है कि अल्लाह तबारक व तआला, किताबों में आता है, हदीस पाक में आता है कि अगर किसी का शोहर अगर परदेश जाता है, अगर उसकी बीवी अगर 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अगर उसके ऊपर दम कर देती है, किताबों में आता है कि जब तक मौत नहीं आती है अल्लाह तबारक व तआला ना मर्द को औरत से, ना औरत से मर्द को अल्लाह कभी जुदा कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उस वक्त तक जुदा नहीं कर सकता कि जब तक मौत नहीं आती है। लेकिन आज जो है घर की बीवी होती है, घर का मर्द होता है, एक दूसरे के ताना मारता है, इसीलिए कि इससे पास रहो। जब किसी के ऐब को तुम छुओगे, जब किसी की ऐब को तुम जाहिर करोगे, गोया कि वो तुझसे लिए बरदुआ तो नहीं करेगी, तो और क्या उम्मीद रखोगे। इसीलिए कि उसके हक पर तुम भी दुआ करो कि अल्लाह मैं परदेश जा रहा हूँ, हमारे बच्चे को, हमारे बाप को, हमारे माँ को, हमारे खानदान के जितने हैं, अल्लाह तो इसे हिफाजत फरमा। और वही बीवी अगर अपने शौहर के लिए अगर दुआ करती है तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब तक वो रोजी कमाता रहेगा, अल्लाह इस दुआओं के बदौलत अल्लाह उसके रोजी में बरकत अता फरमाता। तो हजरत अब्दुल्लाह जो है अभी बैठे हैं, अभी चंद अरसा गुजरा, कितना दिन का? 2 महीना का अरसा गुजरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के शिकम में आए। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे कि आमिना शिकम में आए, हजरत आमिना के शिकम में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फिर 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 5 महीना का अरसा गुजरा है। जैसे कि 5 महीना का अरसा गुजरा है, हजरत अब्दुल्लाह एक दिन बैठे बैठे हजरत आमिना से कहने लगे कि आमिना, हम एक थे तो कोई बात नहीं था, हम 2 हुए तो हमारा काम चलता रहा। अब जो है हमारे बेटा, हमारी बेटी, हमारे नस्ल से जो है और 3 होने वाला है, वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, लेकिन हम 3 होंगे, हमारे बच्चे के ख्वाहिश भी होंगे। आज भी ऐसा होता है, हर बाप जब समझता है कि जब उसकी निकाह होती है वो भी सोचता है कि हम परदेश जाएंगे, हमारे बच्चे का ख्वाहिश होगा, हमारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, हमारा बच्चा जो है अच्छा नॉलेज बनाएगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा।
यही ख्वाहिश होता है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हमारा तीसरा आने वाला है, हमारा बेटा दुनिया में आएगा, उसका ख्वाहिश भी होगा, उसका शौक भी होगा, उसका शौक भी होगा, वो चाहेगा तो बहुत कुछ करेगा, लेकिन मैं परदेश जाना चाहता हूँ। बीबी आमिना फरमाती है कि अभी तो हमारा निकाह का कुछ दिन गुजरा है, ऐ मेरे शहर तुम परदेश जाने की बात करते हो, अभी तो मैं जी भर के तुम्हें देखा भी नहीं हो, मैं चाहती हूँ और कुछ दिन ठहर जाओ, उसके बाद परदेश जाना। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि नहीं, मुझे इजाजत दे दिया जाए। हजरत आमिना इजाजत दे देती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे कि इजाजत दे देती है, हजरत अब्दुल्ला परदेश चले जाते हैं, रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो वक्त था हजरत अब्दुल्ला जिस वक्त आने का, जब आने का वक्त हुआ है, जब कुछ महीने के बाद जब उनका आने का वक्त हुआ है, हजरत आमिना जो है सुबह सुबह उठ जाती है, अपने घर को साफ सफाई करती है, अपने घर को साफ सफाई करती है। आज भी ऐसा होता है, जब किसी का भाई परदेश से आता है, उसकी बहन खुश होती है, किसी का बाप आता है, किसी का बाप आता है तो बेटी खुश होती है, किसी का शौहर आता है तो उसकी बीवी खुश होती है कि 4-6 महीना के बाद मेरा शौहर आने वाला है, 4-6 महीना के बाद मेरा बाप आने वाला है। हजरत आमिना भी खुशी से बहुत खुशी हुई, इतना खुशी हुई, इतनी खुश हुई, उसने अपना घर को साफ किया है, अपने दोपहर हर चीज को उन्होंने साफ सुथरा करके अपने घर को अच्छा से रखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना ही नहीं, हजरत अब्दुल्ला जो है खाना काबा से आए, आने के बाद फरमाने लगे कि बेटी आमिना बहुत ही खुशी खुशी लग रही हो, बहुत खुशी हो। कहते हैं कि अब्बा आप जानते हैं मेरे अब्दुल्ला जिस दिन का कह कर गए थे वो आज का दिन है, मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, मैं इसीलिए मैं घर को साफ कर रही हूँ, कभी बर्तन को साफ कर रही हूँ, कभी घर को साफ कर रही हूँ। जरा बताओ कि अगर किसी का शौहर आएगा तो कितना खुश नसीब वो बीबी है जो उसका शौहर आने वाला है। हजरत आमिना भी खुश है। इतने में जब वक्त बीतता गया, सुबह से लेकर दोपहर हो गया, शाम का वक्त आया, हजरत आमिना कहने लगे कि अब्बा जान देखो तो मेरे अब्दुल्ला का इतना वक्त क्यों लग रहा है, मेरा अब्दुल्ला इतना लेट क्यों कर रहा है, देखो तो जरा काबे की तरफ जाकर देखो, काबे की सहन की तरफ जाकर देखो कि मेरा अब्दुल्ला अब तक आया क्यों नहीं है। कहा कि बेटी तुम खा लो। हजरत आमिना फरमाती है कि नहीं, मेरा अब्दुल्ला मुझसे यह वादा करके गया था कि मेरे हाथ से पकी रोटी जो है 7 रोटी खाएगी, वो रोटी मुझे इंतजाम करना है। अब्बा जाकर देखो। खाना काबा जाते हैं, अब्दुल मुत्तलिब जाने के बाद देखते हैं खाना काबा की तरफ लोगों से पूछते हैं, हर मकान वाले से पूछते हैं, हर दुकान वाले से पूछते हैं, आने जाने राहगीर से पूछते हैं, लेकिन जिसको भी पूछा जाता है सबसे आवाज आती कि नहीं नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। जब खाना काबा के सहन में बैठे, इतने में एक नौजवान दौड़ कर आता है और आकर कहते हैं कि अब्दुल्ला गजब हो गई है, एक दर्दनाक खबर लेकर आया हूँ। वो दर्दनाक खबर क्या है? जिस अब्दुल्ला का तुम इंतजार कर रहे हो वो अब्दुल्ला वापस आने वाला नहीं है, उनका रास्ते में इंतकाल हो गया है। जानते हैं कि अगर किसी जवान बेटा, किसी का बाप का अगर किसी के बाप के सामने अगर किसी जवान बेटा का इंतकाल हो जाता है तो जरा बताओ उस बाप के दिल में कितना ठेस पहुंचेगी, उस बाप को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप काबे की सहन में पड़ जाते हैं और उठने की कोशिश करते हैं तो जरा बताओ कि जैसे उठने की कोशिश कर रहे, ऐसा लगता था कि जमीन को पैर जो है खींच खींच कर पकड़ती है, उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन देख रहे हैं जमीन से उठने का ताकत नहीं है। आज भी ऐसा होता है। अगर बताओ कि किसी का बेटा अगर जवान इंतकाल हो जाए, उसका बाप अगर जिंदा रहता है, लोग कहते हैं कि देखो इसका बाल पक गया है, इसका चूल पक गया है, इसीलिए पकड़ा है कि इसके ये अपने हाथों से अपने बेटा का जनाजा उठाया है, इसीलिए बूढ़ा हो गया है। वही बेटा अगर वही बाप अगर कोई चाय की दुकान में बैठेगा, लोग कहेंगे कि इसका जवान बेटा इंतकाल हो गया होगा, इसका जवान बेटा इंतकाल हुआ। अब जो है बाप के दिल में क्या होगा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है खाना काबा से उठते हैं और अपने घर के तरफ से आते हैं, और घर के तरफ जैसे कि आते हैं, अपने घर में घुसने से पहले, अपने दरवाजा में आवाज देने से पहले अल्लाहु अकबर सोचते हैं कि पुल से पार होने से कम नहीं है। अब आगे जाते हैं, दरवाजा में जैसे आवाज लगाया, हजरत
आमिना जो है आपको सुन लेती है और बाहर आती है कि अब्बा आ गए हैं। कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब मेरे बाबा जान आ गए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछते हैं कि बाबा आप आ गए हैं? कहते हैं कि हाँ बेटी मैं आ गया हूँ। कहा कि मेरा अब्दुल्ला का कोई पता चला? कहा कि तुम जिस अब्दुल्ला का इंतजार करते हो कर रही हो वो अब्दुल्ला आने वाला नहीं है। आमिना फरमाती है, बीबी आमिना फरमाती है कि क्या कहना चाहते हो अब्बा जान, क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहते हो? कहने लगे कि बेटी जिस अब्दुल्ला का तुम इंतजार कर रहे हो वो अब्दुल्ला इंतकाल हो गया है, वो अब कभी नहीं आएंगे। अब आमिना खातून के देखो, हजरत आमिना जो है जहाँ खड़ी थी वही साल में पड़ जाती है और अपने शिकम अनवर में हाथ रखकर आसमान की तरफ निगाह डाल के कहती है कि अल्लाह अभी मेरे बेटे ने अपने बाप के शक्ल को नहीं देखा, अपने बाप के तस्वुर को नहीं देखा। मेरे बेटे ने अभी दुनिया में आने से पहले मेरे बेटे को तूने यतीम कर दिया। खैर से आवाज आती है कि आमिना अब घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे शिकम से जो बच्चा पैदा होगा बल्कि यतीम नहीं बल्कि कायनात का यतीम बनाने का मैंने सारा का सारा बना दिया। जिसको तू यतीम कह रही है बल्कि वो यतीम नहीं बल्कि मैंने कायनात के यतीम को महबूब और महबूब को यतीम का सहारा बनाने का वादा किया। तो कुछ लोग बहुत सारे मुहद्दिस अपने किताब में लिखते हैं कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर आ जाते लोग बहुत मुहद्दिस बहुत किताब में लिखते हैं कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाते तो फिर अगर अब्दुल्ला का इंतकाल होगा कोई बात नहीं। तो सुनिए, आज कुछ लोग जो है नबी को अपना जैसा कहते हैं, इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आने से पहले अब्दुल्ला की जिंदगी को खत्म कर दिया ताकि अगर अब्दुल्ला जिंदा होते तो उन्हीं की नस्ल से कोई और भी बेटा पैदा हो जाता तो मेरे नबी को बड़ा भाई कहता। अगर नबी को कोई बड़ा भाई, अगर कोई सगा भाई भी अगर नबी को बड़ा भाई कहे ये खुदा को कमाना नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को आने से पहले उसे यतीम बनाया, कायनात का सहारा बनाया ताकि उनसे कोई और बच्चा अब्दुल्ला से ना हो, ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बड़ा भाई कोई बड़ा भाई कहे ये खुदा को गवारा नहीं है। और आजकल के हलवे मौलवी जो है ना, हलवे मौलवी जानते हैं जिसको हम और आप 24 नंबर कहते हैं, हलवे मौलवी एकदम नकम्मा कहते हैं कि नबी बड़ा भाई जैसे। अरे उनके पसीने का एक कतरा भी किसी दुल्हन पर अगर लग जाता तो 7 खानदान तक उनके पुष्प जो है खुशबू बच्चा पैदा हो और तुम्हारे खुशबू से सब भाग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। हमारे और आपके पसीने के बदबू से लोग भाग जाते हैं और नबी के खुशबू लेने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े होते, कहते कि यार रसूलुल्लाह के पसीना मुबारक थोड़ा सा दे दीजिए ताकि मैं अपनी दुल्हन पर लगाऊं। ये लोग कहते हैं कि नबी बड़ा भाई नाउज़ुबिल्लाह है ना, नबी बड़ा भाई नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम जश्न ईद मिलाद क्यों मना रहे हैं? इसीलिए वहाबी से दूर रहो। थोड़ी तवज्जो दीजिए भाई, मैं कलेजा और फेफड़ा निकाल के दे रहा हूँ। बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद मैं इंशाल्लाह सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की
دیکھیے آپ لوگ اگر سنیے گا تو اچھا سے میں سناؤں گا. دیکھیے توجہ میرے طرف دیجیے. جو لوگ آئیں گے الحمدللہ باقی لوگ ہیں دیکھ لیں گے. آپ لوگ جتنے ہیں کرسی والے ہیں آگے پیچھے آپ لوگ سنیے. میں آپ کو یہی بات بتاؤں گا مولانا صاحب ہمارے استاد میں سے ان کے پاس ہم لوگ چھوٹے سے آدمی ہیں چھوٹے سے سمجھ رہے ہیں. ان لوگ کے پاس ہم لوگ قرآن خوانی پڑھنے آتے ہیں میلاد کرنے آتے ہیں. تو بتاؤ کہ ہمارے استاد ہوئے کہ نہیں. تو استاد کے پاس اگر شاگرد کہے اگر ہمارے استاد کا فیضان اگر مل جائے تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا منزل کامیابی ہے. تو سنیے بڑی محنت کے بعد میں تیار کیا ہوں صرف سنانے کے لیے. بڑے بڑے جلسوں میں بہت سارے علماء آتے ہیں خطبہ آتے ہیں اپنا اپنا شہرت نکال کر ایسے ہلا کر اسٹیج ہلا کر چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارا وہ نہیں بلکہ ہم نبی کی باتیں کہیں گے دل سے کریں گے. ہم قرآن پڑھیں گے تو دل سے پڑھیں گے. جانتے ہیں کہ اگر دل سے کرو گے یہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اور ایسا نہیں اگر دل سے اگر نہیں کریں تو ڈر یہی رہے گا کہ آج جو میں اس کرسی میں بیٹھ کر جو میں تقریر کر رہا ہوں دین اور اسلام کی جو میں باتیں کر رہا ہوں اللہ کو اگر یہ پسند نہیں آیا تو یہ نوکری اٹھا کر کسی کو بھی دے سکتا ہے نا. یہ نوکری کسی کو بھی دے سکتا ہے. لیکن اسی لیے میں دل سے کر رہا ہوں. آپ لوگ بھی دل سے سنیے تو الحمدللہ بیڑا پار ہوگا. تو سنیے اب جو ہے کائنات میں سہارا بن کر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. یہ آپ کو پتا چل گیا کہ آمنہ کے شکم میں جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ کائنات کو سہارا دینے والا ہے. اب سنو نبی کی امی کی زبان سنو. میں آگے لے چلتا ہوں آپ کو. نبی کی امی فرماتی ہے کہ اب جیسے جیسے مہینہ گزرتا گیا اب جو ہے اب 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ تک گزرتا گیا ہے. اب میری ماں بہنوں سے آپ پوچھو کہ جس کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے 1 مہینہ میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. کھانا پینا اڑ جاتا ہے ان کا الٹی ہوتی ہے ہر چیز کو دیکھتی ہے تو اسے بدبو نظر آتی ہے. جب 2-4 مہینہ ہوتا ہے تو میری ماں بہنیں سے پوچھو جس کے بچے شکم میں رہتے ہیں اسے کھانا پینا اچھا نہیں ہے. پیر میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے ہاتھ میں درد ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جیسے جیسے مہینہ گزرتا گیا مہینہ آگے چلتا گیا ہے مجھے سکون آتی گئی. پہلا مہینہ آیا تو ایک فرشتے آتے گئے. دوسرا مہینہ آتے گئے کوئی نہ کوئی نبی آتے گئے مجھے بشارت دیتے گئے کہ آمنہ تیرے شکم میں جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کا سردار آنے والا ہے. تیسرا مہینہ میں آتے گئے کہنے لگے کہ سنو آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے. جیسے جیسے گزرتے گئے یہ بچے کے بارے میں شہرت ہوتے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے چلیے تو میں آپ کو بتاؤں اسی لیے کہ اب جب آگے چلتے ہیں اب بتاؤ کہ جس کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے ابھی اگر کسی نئی دلہن کی اگر کسی کا اگر بچہ اگر کسی کا شوہر اگر انتقال ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں اس عورت سے جا کر پوچھو کہ اس کا دن کیسا گزرتا ہے اس کا رات کیسا گزرتا ہے. اس عورت جو ہے روتے ہیں اتنے میں جو ہوتے ہیں حضرت آمنہ جو ہے صبح میں بھی روتی ہے دوپہر میں بھی روتی ہے شام میں بھی روتی ہے. ان کا رونا ہی کام ہوتا ہے. ایک دن جو ہے خانہ کعبہ میں حضرت عبد المطلب جو ہے خانہ کعبہ کے صحن میں ان کے جالی کو پکڑ کر ان کو جالی کو پکڑ کر حضرت عبد المطلب دعا کیے کہ دیکھنے لگے کہ آمنہ جو ہے صبح میں بھی رو رہی ہے دوپہر میں بھی رو رہی ہے شام میں رو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں آپ اٹھا کر خانہ کعبہ کے جالی کو پکڑ کر حضرت عبد المطلب دعا کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے 10 بیٹے ہیں اگر ایک بیٹے چلے گئے تو میں 9 کو دیکھ کر تسلی لے سکتا ہوں لیکن آمنہ کا تو ابھی جو ہے ابھی ان کی نکاح ہوئی 5 مہینہ ہوا ہے لیکن وہ کس کے سہارے جیے گی. اتنا دعا کرنا تھا غیب سے آواز آتی ہے کہ عبد المطلب تو جس کے لیے دعا کر رہا ہے سن تو آمنہ کا سہارا کی بات کر رہا ہے. میں نے آمنہ کا پیٹ میں جو بچہ دیا ہو وہ جب دنیا میں آئے گا نا میں صرف آمنہ کا سہارا نہیں بلکہ کائنات کا سہارا بنا کر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر مجاہد ملت سردار کی آمد سردار کی آمد میرے دل کے اندر علی
मर जाऊं तो अली अली मेरे कब्र पे लिखना अली अली मेरे कब्र पे लिखना अली अली दिल कुंता मौला अली अली दिल कुंता मौला अली अली मेरे नबी ने बोला अली अली दिल कुंता मौला अली अली नारे तकबीर नारे रिसालत अब्दुल मुत्तलिब तो आमिना की सहारा का बात करता है। मैं जो आमिना को बच्चा देने वाला हूँ वो पूरे कायनात का सहारा बनकर आया, पूरे कायनात का सहारा बनकर आया। ये माइक वाला ना सिर्फ साउंड वाला। दर्द पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीअना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक ठाक है? ठीक लग रहा है? बताओ आगे चलो, आगे चलो। हाँ, मोहब्बत से पीछे से अगर एक मतलब कोई नारा लगा देता तो अच्छा होता। नारा लगाइए आप। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत मतलब हजरत जिंदाबाद सरकार की आमद दिलदार की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा 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 डूब के बोलो मरहबा डूब के बोलो मरहबा मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब किबला जिंदाबाद ख्वाजा मानखार जलसा कमेटी जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह करते रहिए पता ही नहीं चला कि ये घंटा हो गया, है ना? सुनिए, मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। मोहब्बत अगर आपका रहेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन इधर उधर तवज्जो होगा तो नहीं बताऊंगा। हाँ, सुनिए, आप लोग इतना मेहनत किए हैं, ये लाइटिंग सजाना के लिए। कल बोले थे कि आज हो गया, इसको तैयारी करने के लिए 6 महीना पहले से आप लोग लगे। ये लोगों के पास 1000 मरतबा फोन करने के बाद तब 500 रुपया आता है, कई मरतबा फोन करने के बाद पता चलता है तब 500 रुपया देगा। इतना कुर्सी का इंतजाम, लाइट का इंतजाम, शिगली का इंतजाम, तबर्रुक का इंतजाम, ये आम बात नहीं है। बहुत 3-6 महीना से इंतजाम करते करते आज इस जगह में आप लोग पहुंचे हैं। इसका मतलब क्या है जानते हैं? अगर आपकी तवज्जो रही, मैं आपको बताऊं, सुनिए, मैं आपको बताऊं, उस जमाने का दस्तूर था जब खाना काबा में, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है, एक दिन जानते हैं खाना काबा के तमाम कर रहे थे। जब खाना काबा के तमाम कर रहे हैं तो उस मक्का के कुछ जो है खास कुछ लोग जो है तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब आपसे एक सवाल है। कहते हैं कि क्या सवाल है? आप काबे के जो मुतल्ली है आपको कहने के लिए घबरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बोलेंगे कैसे? इसलिए कि मोहब्बत से कहेंगे या रसूल अल्लाह। आपके सुनो, खाना काबा में लोग आते हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, इनसे मोहब्बत है इसलिए मैंने बताया है। तवज्जो इधर दीजिएगा, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। खाना काबा में जब कुछ लोग आते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कहते हैं कि मेरे मक्के में जो दस्तूर है, उस वक्त मक्का में दस्तूर था, अगर किसी औरत का अगर शौहर इंतकाल हो जाता था, 1 साल तक जो है वो बाल में तेल नहीं लगा सकती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब जरा बताओ कि मक्का में क्या शरीयत बदल गई है, मक्का में क्या तौर तेवर जो है ये सब बदल गई है, कहना क्या चाहते हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि आपकी बीवी, आपके बेटे की बीवी जो है हजरत आमिना जो है गम बनाना छोड़ दिया है। वो जो है ऐसी खुशबू लगाती है, ऐसी खुशबू लगाती है जो मदीने में नहीं मिलता है, पूरी गली जो महक जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सर से जो है आके नम हो जाती है, सर को झुका लेते हैं और धीरे धीरे उठते हैं। कहाँ उठते हैं? उठने के बाद अपने घर के तरफ आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब घर के तरफ आते हैं, अपने सहन में आते हैं। सुनिए, मैं आपको बताऊं, अपने घर आने के बाद जब हजरत बीबी फातिमा से कहते हैं, ये फातिमा कौन है जानते हैं? अब्दुल मुत्तलिब
यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम हजरत फातिमा है और मेरे नबी की बेटी के छोटी बेटी का नाम भी फातिमा है। इसीलिए मैं सुनो मैं आपको बताऊं, उनकी दादी जो है हजरत फातिमा को हजरत अब्दुल मुत्तलिब आवाज देते हैं और अपने आंखें को नीचे कर लेते हैं, अपने सर को जो है नीचे कर लेते हैं, अपने सांस जब नीचे कर लेते हैं, हजरत फातिमा कहती है ऐ मेरे शहर जरा बताओ, ऐ मेरे शरीक के हया बताओ, आज आपका सर जो है नीचे क्यों है? कहती है कि जानती हो आज हमारी बहू जो है आमना जो है हमारे सर को नीचे कर दिया है। बोले कहना क्या चाहते हो? कि हमने सुना है कि फातिमा जो खुशबू लगाती है, फातिमा जो है फातिमा खुशबू लगाकर घूमती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, मक्के की औरतें कह रही है, मक्के के लोग कह रहे हैं। कहते हैं कि सुनो जाओ तुम जाकर पूछो। हजरत फातिमा को कहते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जाओ तुम आमना से पूछो खुशबू लगाती है कि नहीं, खुशबू लगाना बंद कर दो, खुशबू ना लगाए क्योंकि मेरा बेटा अभी जन्मदिन गया है, अभी से वो खुशबू लगा रही है। इतना कहना था। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत फातिमा नबी की दादी कहती है, हाथ जोड़ लेती है, कहा कि नहीं, एक दिन ऐसा हुआ था मैं भी सोच रही थी आमना को जाकर पूछूं कि आमिना तू खुशबू क्यों लगाती है। जैसे कि मैंने आमिना को आवाज लगाई कि आमिना, उसने मेरे तरफ मुड़कर देखा, उनके सर से उनके पेशानी से एक नूर निकला जो मेरे पेशानी को छड़ता हुआ मैं जो है बेहोश होकर जमीन हजरत फातिमा फरमाती है कि मैंने भी एक मर्तबा सोची थी कि मैं आमना को जाकर पूछूं, लेकिन उनके पेशानी से एक नूर निकला जो मेरे चेहरे पर मेरे पेशानी पर लगा है और लगाने के बाद मैं जमीन पर बेहोश पड़ गई। मैं फिर कुछ देर के बाद उठी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं एक काम करो, मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी मेरे पीछे पीछे चलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत फातिमा एक साथ गई और जाने के बाद जब आवाज लगाती कि फातिमा ने उठकर खड़ी हो गई। जानते हैं कि जब खड़ी होने के बाद कहती है कि सुनो मैंने जानता हूँ कि बेटी फातिमा, मैं जानता हूँ कि तुम जो है आज मक्के के लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं कि बाबा जान क्या कहते हैं कि तुम ना क्या खुशबू लगाती है। हजरत आमिना के दिल में आह निकल जाती है और इशारा फरमाती है कि बाबा जान आप कौन से उस तार में छू दिया है, कौन सा सत्तर आपने छू दिया है। एक मेरे दिल में आह भरी थी, मैं जिसको जाहिर नहीं करना चाहती थी। मैं जो है लोग कहते हैं मैं खुशबू लगाती हूँ, नहीं बाबा जान मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि मक्के के जितने औरतें हैं सब औरतें कहती है कि तुम्हारे बेटे का कम अब्दुल्लाह का कम जो है आमिना भुलाती है, उसने खुशबू लगाई है। हजरत आमिना फरमाती है कि नहीं बाबा जान मैं खुशबू नहीं लगाती। जब से आपके बेटे के उस रात का मेरा शिकम पर आया है, मैं जिस गली से गुजरती हूँ वो गली खुशबू से मुअत्तर वो गली भी खुशबू से मुअत्तर और सुनेंगे जश्न इज़ मिलादुन नबी मनाने वाले बेशक सुनिए नबी की अम्मी की बात सुनिए। ये आइनो की बात नहीं है। नबी की अम्मी फरमाती है कि अब्बा और देखना है आपको। कहा कि बेटी दिखाओ और कहते हैं कि एक तकिया उठा कर लाती है, जिस तकिए में मेरे
आका की अम्मी हजरत आमिना सोची कि तकिया को उठाकर ला, कहा कि अब्बा इसको सूंघो, फिर उसको सूंघा ना, वो भी खुशबू से मुअत्तर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी खुशबू से मुअत्तर है। फिर नबी की दादी हजरत फातिमा एक कच्ची दीवार से एक मिट्टी को लाती है और लाने के बाद अब्दुल्ला के नाक के करीब ले जाती के मेरे सरताज इसको सुनो, इसको सुनो। अब जैसे कि सुना ना तो क्या देखती है, वो क्या देखते हैं, वो मिट्टी भी खुशबू से मुअत्तर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मिट्टी भी खुशबू से मुअत्तर है। नबी की दादी हजरत फातिमा फरमाती है कि सुनो सुनो मेरे सरताज, आज नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आज 7 दिन पहले हजरत आमिना ने इस कच्ची दीवार पर हाथ रखी थी, वो दीवार आज तक खुशबू दे रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। मरहबा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अब बताओ कि जब नबी की अम्मी 1 हफ्ता पहले कच्ची दीवार में हाथ रखे, वो आज तक खुशबू से मुअत्तर हो सकता है, तो जरा बताओ कि आने वाला जो बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह वो कितने खुशबूदार सुभान होंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनेंगे, बेशक। सुनिए आगे मैं बताऊं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी फरमाती है, हजरत फातिमा फरमाती है, क्या फरमाती है कि इनको मैं देखती हूँ कि अलग थलग से रहती है, और इतने में हजरत आमिना फरमाती है कि अब्बा चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। फरमाती है कि मामा आप खाना खाना चले जाते हैं, घर में जो पानी रहता है आप पानी लेने के लिए चले जाते हैं, ये हमारी बात नहीं है। अगर हम कहेंगे, आज सुनिए, अगर हम बताएंगे, लोग कहेंगे कि ये बरेली का मौलाना है, हाँ? अगर हम बताएंगे कि ये बरेली का मौलाना है, आपका अगर इमाम साहब मौलाना अबुल कलाम कहेगा नहीं ये बरेली पक्का बरेली है, ये बरेली से पढ़ के आए इसीलिए बता रहा है। लेकिन सुनो, उस वक्त का बरेली का इमाम अहमद रजा ने बताया नहीं है, नबी की अम्मी फरमाती है आपका ईमान ताजा हो जाएगा। नबी की अम्मी फरमाती है, अब्बा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब से फरमाते हैं कि अब्बा आप तो खाना काबा चले जाते हैं, सहन में कुछ पानी ले जाते हैं, लोग वहां पीते हैं, आप पानी ले चले जाते हैं, लेकिन घर में जब मेहमान आते हैं यहाँ पानी नहीं रहता है, लेकिन मुझे पानी की जरूरत होती है तो मैं रस्सी और डोल लेकर मैं चली जाती हूँ, मैं कुआं पर जाती हूँ पानी लेने के लिए। सुनो सुनो, मैं जब पानी लेने के लिए जाती हूँ, मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ वो पत्थरिया इलाका होता है। मक्का शरीफ में जो लोग गए हैं वो पत्थरिया इलाका होता है, और पत्थरिया इलाके में वहाँ बड़े बड़े भी कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे भी कंकड़ होते हैं। और जानते हैं जिस कंकड़ में मैं पैर रख देता हूँ, आप जानते हैं आपके बेटे अब्दुल्ला के अमानत मेरे शिकम में है। मैं चाहती थी कि मुझे तकलीफ हो, लेकिन सुनो, मैं बाबा जान अब्दुल मुत्तलिब को फरमाते हैं कि अब्बा जान जिस पत्थर पर मैं पैर रख देती हूँ वो पत्थर जो है मौम से मौला हो जाएगा। बस इतना ही नहीं, कहते हैं कि अब्बा जान और एक बात भी है, मैं जब जाती हूँ वो मौम से भी ज्यादा मलम हो जाता है, तो मैंने एक पत्थर को उठाया अपने हाथ, एक पत्थर को, मौलाना साहब तवज्जो, एक पत्थर को मैंने हाथ उठाया और सिर्फ दिल में इरादा किया कि मलम कैसे हो गया। वो पत्थर बोलने लगे, बोलिए सुभान अल्लाह। वो पत्थर बोलने लगे कि आमिना अभी तो छोटे छोटे पत्थर मोम हुए, साहबजादा को आने दे, बड़े बड़े पत्थर भी मोम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मुस्तफा को आने तो दे,
अभी तो छोटे मोम होए, अभी बड़े बड़े पत्थर भी मोम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं कि अब्बा जान मैं रस्सी को लेकर, मैं डोल को लेकर, जिसको हम बाल्टी कहते हैं, उस बाल्टी को लेकर मैं कुआं के किनारे पहुंचती हूँ और किनारे पर जैसे कि पहुंचती झांकने की देर होती है, पानी उछलता हुआ ऊपर हजरत आमिना फरमाती है कि मुझे देखने की देर होती है, पानी उछलता हुआ ऊपर आ जाता है। हजरत आमिना फरमाती है कि अब्बा जान बस यही तक महदूद नहीं है, आगे चलिए मैं आपको बताऊं। ऐ मेरे दीनदारों, मेरे काम के शहजादों, ऐ मेरे मान खान के तमाम सुन्नी मुसलमानों, कोई सुन्नी मुसलमान रहेगा ये गवारा नहीं कर सकता नबी की अम्मी की बात मैं कर रहा हूँ। मुस्तफा जाने रहमत कितना खुश हुआ होगा, मदीना से कितना खुश हुआ होगा। मेरे आका की अम्मी फरमाती है कि सुनो सुनो, मेरे अब्बा जान इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब कुआं के करीब जाती हूँ मुझे बाल्टी डालने की जरूरत नहीं है, मुझे रस्सी फेंकने की जरूरत नहीं है। मक्के की सारी औरतें कहती है कि ऐ आमिना कुछ देर और ठहर जा, हम लोग भी पानी ले लेते हैं। आमिना जब तक तू रुकेगी, जब तक तू ठहरेगी, कुआं का पानी ऊपर रहेगा। आमिना तू जैसे कि चली जाती है, कुआं का पानी नीचे चला जाता है, मैं वहीं ठहर जाती हूँ। और जैसे मैं ठहर जाती हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं जब ठहरने के बाद मैं आखिर में आती हूँ, एक तो आपका बेटा अब्दुल्लाह के अमानत मेरे शिकम में है। मैं जब आती हूँ जानते हैं कि सारे पत्थर बम हो जाते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं जब धीरे धीरे आती हूँ, मैं अपने घर में जब साथ में आती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, कभी पेड़ बोल रहे हैं, कभी पौधे बोल रहे हैं, कभी आसमान के साथ बोल रहे हैं, कभी तोते बोल रहे हैं। जब सारी चीजें बोल रहे हैं, मैं हजरत आमिना फरमाती है कि जब सारी चीजें बोलती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि बेटी आमिना, क्या पेड़ बोलते हैं, क्या तुझे समझ में आता है, क्या पौधे बोलते हैं, क्या तुझे समझ में आता है, क्या तोते बोलते हैं, तुझे समझ में आता है, क्या घास बोलते हैं, तुझे समझ में आता है। हजरत आमिना फरमाती है कि अब्बा जान मुझे पेड़ भी बोलता है तो मुझे समझ में आता है, जब पौधे बोलते हैं तो मुझे समझ में आता है, जब कंकर बोलते हैं तो मुझे समझ में आता है। कहा कि क्या कहते हैं, अब कोई दीनदार, अब कोई सुन्नी मुसलमान कोई खामोश नहीं रहेगा, ये हम नहीं बता रहे हैं, बरेली के इमाम अहमद रजा नहीं बता रहे। हजरत आमिना फरमाती है कि बाबा जब पत्थर बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, क्या कहते हैं, और आवाज लगा कर कहते हैं अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ऐ नबी की अम्मी तुझ पर भी सलाम हो, आने वाले तेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सरकार की आवाज़, मरहबा, सरकार की आवाज़, मरहबा, सरकार की आवाज़, मरहबा, सरकार की आवाज़, मरहबा, नबी की आवाज़, मरहबा, मदीने की आवाज़, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो क्या पता चला कि हम जश्न ईद मिलाद नबी करें, क्या बरेली का इमाम बताया, अहमद रजा का तरीका है, ये क्या अहमद रजा का तरीका है सलाम पढ़ना। आज अगर कोई इमाम, कोई अगर मौलवी बरेली का तकरीर करता है तो लोग कहते हैं कि नहीं ये इमाम अहमद रजा के इश्क में बोल दिया, नहीं, बल्कि ये अहमद रजा का तरीका नहीं। क्या वहां पर भी हजरत आमिना को सिखाने के लिए बरेली का इमाम गया था? नहीं, बल्कि ये आमिना खुद लिखती है, आमिना खुद फरमाती है, बल्कि ये अहमद रजा का तरीका नहीं, सलाम कल भी पढ़ा जा रहा था। सलाम कल भी पढ़ा जा रहा था, आज भी पढ़ा जा रहा है। सुबह कयामत
रसूल अल्लाह। तो जरा बताओ कि आज अगर कोई बरेलवी का मौलवाना, अगर सिलसिला कादरिया का कोई अगर मानने वाला अगर नबी पर पढ़ ले के मुस्तफा जाने रहमत बिलास व सलाम, तो लोग कहते हैं कि ये शिर्क करता है, ये बिदअत करता है। बल्कि नहीं, कल भी वही कह रहा था, पत्थर भी कल सलाम पढ़ रहा था नबी पर, और आज भी हम नबी पर सलाम पढ़ रहे हैं। तो मुझे क्या लेने दिया जाए जिनके अपने नसब का ठीक ना हो, वो क्या बताएंगे कि नबी की ताज़ीम क्या है, जैसे आमद रसूल क्या है। वो कफा बिल्लाह शहीदा, कुरान कहता है वो कफा बिल्लाह शहीदा, महबूब के नाश के लिए उसका खुदा काफी है ना। महबूब का नाश के लिए, महबूब की तारीफ के लिए उसका खुदा अकेला काफी है। इसीलिए तो कभी कंकर बोलता है तो कभी पेड़ बोलता है, कभी पौधे बोलता है तो कभी हरियाली बोलता है। इसका मतलब क्या जानते हैं कि नबी पर सलाम कल भी पेड़ पौधे ने पढ़ा था, और आज सुन्नी बरेलवी मौलाना भी पढ़ता है, सुन्नी मुसलमान भी पढ़ता है। इसीलिए तो जब नबी की बारगाह में आए, नबी की बारगाह में आए और आकर कहने लगे कि अगर तू नबी है, अरे खुद का उसका चच्चा अबू जहल, अबू लहब, ये सब जो है चच्चा है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन है। कहते हैं कि एक काम कर भतीजा, अगर ये मेरे हाथ में क्या अगर कह देगा तो हम कलमा पढ़ लेंगे, तेरा कलमा पढ़कर हम मुसलमान हो जाएंगे। तो कहा कि चचा हमें क्या पूछ रहे हो, एक काम करो ना, उसी से पूछो ना, वो हम क्या है वो बताएंगे। अब ऐसा ही कहना था तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान क्या कहा, वो कंकर क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कंकर कहा कि ये सबसे बड़ा जादूगर है, ये सबसे बड़ा जादूगर, ये मोहम्मद सबसे बड़ा जादूगर। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नहीं, बल्कि कहने लगे अच्छा एक काम कर, ये तो छोटा सा पत्थर था जो तुझे पहचान लिया होगा, लेकिन एक काम कर, उस दरख्त से कहो, उस गाछ से कहो कि अगर वो गाछ अगर कह दे कि क्या यहाँ आ सकता है, तो कहने लगे चचा हमें मत पूछ, बल्कि उस दरख्त से, उस गाछ से जाकर कहो कि तुझे मोहम्मद बुला रहे हैं। जब दरख्त को जाकर इरशाद फरमाया कि तुझे मोहम्मद बुला रहे हैं, दरख्त जो है वो गाछ जो है कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं जो है हिलना शुरू कर दिया, और अपने जड़े समझ आकर नबी की बारगाह में कहा अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।